So, first of all, before proceeding to the topic of social research, you should know the basic concept of research. So, what is research? Research is a systematic and organized effort to investigate a specific problem that needs a solution. आप लोगों ने जैसे प्रॉब्लम के लिए पढ़ा था, प्रॉब्लम कब होती है? जब गैप होता है, जब कोई फैक्टर्स अनएक्सप्लेन्ड होते हैं या कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स होते हैं. इसी टाइप से जो रिसर्च होती है, रिसर्च को अगर हम स्प्लिट करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च? इट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, री प्लस सर्च. When we want to explore one thing again and again and want to explore some new factors by doing some systematic work, this all effort is known as the research. And secondly, it contributes to the general body of knowledge. It also corrects human knowledge. रिसर्च हम करते हैं, इट ऑल्सो करेक्ट ह्यूमन नॉलेज. का क्या मतलब है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं, जो नई रिसर्चेस होते हैं, उन्हें वो या तो उन्हें अप्रूव करते हैं या कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. जैसे सपोजिंग पहले की जो स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि जो एग्रेशन है दैट इज फाउंड टू बी मोर अमंग मेल्स. लेकिन अब जो लेटेस्ट स्टडीज हुई हैं वो एग्रेशन में स्पेसिफिकेशन करती हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एग्रेशन इज फाउंड टू बी मोर अमंग मेल एंड व्हाट टाइप ऑफ एग्रेशन इज फाउंड टू मोर अमंग फीमेल. सो इट ऑलवेज करेक्ट्स ह्यूमन नॉलेज. And actually research is simply the process of arriving as dependable solution to a problem through the planned and systematic collection, analysis and interpretation of a data. So what I mean to say is that research is a systematic analysis and a planned analysis of some work. Research is the most important process for advancing knowledge or promoting progress and to enable man to relate more effectively to his environment, to accomplish his purpose and to solve his conflict. So if we want to gain knowledge, if we want to verify our existing knowledge, if we want to arrive on a new solution, if we want to correct our existing knowledge, this is all known as the process of research. Now, what is social research? Social research is a method used by social scientists and researchers to learn about people and society so that they can design products, services that cater to various needs of the people. Different socio-economic groups belonging to different parts of a country think differently. Social research seeks to find explanation to unexplained phenomena, to clarify the doubtful and correct the misconceived fact of social life. It involves the application of scientific method for understanding and analyzing of social life in order to correct and verify the existing knowledge as a system. The main idea behind social research is to discover new interrelations, new knowledge, new facts, and also to verify the old ones. अभी तक आप लोगों ने दो टाइप की रिसर्चेस पढ़ी. आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ा था. नाउ यू आर एक्सपोज टू द फैक्ट ऑफ सोशल रिसर्च. बेसिक इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये एंड ऑफ द स्लाइड आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड सोशल रिसर्च. लेकिन फिलहाल सोशल रिसर्च से क्या मतलब है कि सोशल रिसर्चर्स सोसाइटी में जो प्रॉब्लम प्रिवेल करती हैं उनके बीच में, उनको एक्सप्लोर करने के लिए उनके डिफरेंट प्रॉब्लम के बीच में किस टाइप की एसोसिएशन है उनको हम जानने की कोशिश करते हैं. उनके जो ओपिनियंस हैं उनको गैदर करने की कोशिश करते हैं. तो और जितने हमारे सोशल प्रॉब्लम, हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम, हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती हैं, दे ऑल कम अंडर द स्टडी ऑफ सोशल रिसर्चेस. According to C.A. Moser, social research is a systematized investigation to gain new knowledge about social phenomena and problems. This is self-explanatory definition by C.A. Moser. Now, we are focusing on the objectives of social researches. कि social research करने का basic purpose क्या होता है? Why some social researches are conducted? So, these are different objectives of social researches. Number one, to facilitate the understanding of human behavior, to acquire knowledge about social phenomena, events, issues, and problems, to identify functional relationship existing in the social phenomena, to find out the natural laws that regulate or direct social phenomena,
to standardize the society concept, for example, culture, struggle, generation gap, social distance, to formulate solution to social problem, to maintain social organization, remove social tension, misconceptions, and to develop social revival plan. तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, बीच में हमने आपको क्यों नहीं एक्सप्लेन किया? इसलिए क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? सोशल फेनोमेना पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। या तो हम उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या तो हम उनका सोल्यूशन जनरेट करना चाहते हैं, या तो जो डिफरेंट लोगों के बीच में टेंशन होते हैं उन्हें हम रिजॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक बेनिफिशियल हो सकती है उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर हमें कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो व्हाट टेक्निक्स, व्हाट अप्रोचेस ऑफ द साइकोलॉजी कैन बी यूजफुल टू प्रिवेंट एंड टू मॉडिफाई देम, इन सारी चीजों का जो स्टडी है दैट इज यूज्ड अंडर सोशल रिसर्चेस। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इन सोशल रिसर्चेस वी try just to explore the association between different social phenomena. This is very important thing. इस सोशल रिसर्च में हम डिफरेंट सोसाइटल फेनोमेना में सिर्फ एसोसिएशन क्या है और उस एसोसिएशन की डायग्नोज क्या है इसे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिसर्च: इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स. The ultimate goal is to discover cause and effect relationship between social problems. It emphasizes the development of generalization principle of theories that will be helpful in predicting future occurrences. It is based upon observable experience or empirical evidence. It requires expertise. The researcher knows what is already known about the problem and how others have investigated. It is carefully recorded and reported. Each important item is defined. Limiting factors are recognized. Procedures are described in detail. References are carefully documented. Results are objectively recorded. And conclusions are presented with the scholarly cautions and restraint. And in the last, it is interdisciplinary in nature. सोशल रिसर्चेज में सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब में ही हमारी सोशल रिसर्चेज होती हैं और उनका जो बेसिक फाउंडेशन है वो क्या है? डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन को एक्सप्लोर करना और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस उनके क्या हो सकते हैं उनके बारे में जानना। सोशल रिसर्चेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस आपके फील्ड एक्सपेरिमेंट हो गए, लैब एक्सपेरिमेंट हो गए, इसी टाइप से सोशल रिसर्चेस के टाइप्स होते हैं। बेसिकली 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, फिर इनके सेग्रीगेशंस होते हैं। पहला है आपका बेसिक रिसर्च. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च. It is undertaken to improve our understanding of certain problems that commonly occur in social settings and how to solve them. It undertakes for sole purpose of adding to our knowledge, that is fundamental and generalizable. This type of research may have no immediate or planned applications. तो ये बेसिक रिसर्च फंडामेंटल होती है जो हमारी नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश करती हैं। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, सोशियोमेट्रिक सर्वेज, ये सब इनके टूल्स होते हैं। Second is applied research. It is also called action or decisional research. It is undertaken in response to a social problem which requires a solution. Its major purpose is to answer practical and useful questions. The results are practically applied to solve immediate problems. It involves normative prescriptions, as applied research is concerned with knowledge that has immediate application. It is also called decisional research. ये जो अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? अप्लाइड रिसर्च में ये बेसिकली सोसाइटल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं। ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके डायग्नोस्टिक पार्ट की ओर फोकस करती हैं। मतलब एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्निक in solving the societal problem or the psychophysical problem of the individual. That is why these type of researchers are known as the applied researchers. जितने आपकी साइको सोशल रिसर्चेज होती हैं दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अप्लाइड रिसर्चेस। जो अब आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है दैट फोकसेस बेसिकली अपॉन द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड सोशल रिसर्च। इसको मैंने एक टेबल के द्वारा क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बेसिक फोकस क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ रिसर्च दैट यूजेस अ साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स मैनिपुलेटिंग वन और
more control variables of the research subjects and measuring the effects of this manipulation on the subject. It is known for the fact that it allows the manipulation of control variables. इसका समराइज करके हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज होती हैं ये आपके जो कंट्रोल वेरिएबल होता है इनका इफेक्ट हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और इनमें हम इन कंट्रोल वेरिएबल्स को कंट्रोल करके देन वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन सम परफॉर्मेंस वेरिएबल दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. So the presence of IV and DV is necessarily involved in experimental researches. While social research is the type of research that does not involve the manipulation of control variables. ऐसा इसमें क्यों होता है कि because all the social researches are conducted in the natural setting, and when we are conducting some research in the natural setting, it is not possible for us to implement many controls while we are observing the things or we are seeking the opinion of some population. So this is just not possible to have control on many variables. Second difference is that experimental research is usually undertaken when the goal of the research is to trace cause and effect relationship between defined variables. While social research is used when the researcher has no specific research question about a causal relationship between two different variables, and manipulation of the IV is impossible. इनमें क्या होता है, जैसे जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज हैं, दीज आर बेसिकली अप्लाइड इन द फिजिकल साइंसेस, जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हैं. कि जैसे अगर मान लीजिए एक शीशे का ग्लास टेबल पे रखा था और वो टूट गया, तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो बहुत क्लियरली डिफाइन की जा सकती है कि ग्लास क्यों टूटा, मेज पर गिरने की वजह से ग्लास टूटा. लेकिन as far as social researches are concerned, and these type of social researches are concerned in exploring the individual factors and in exploring and diagnosing the social problems, so this is not possible. We can establish only association between two or more than two variables, but we cannot say that one is the cause or the other is the effect of the previous one. For example, अगर मान लीजिए हम ये प्रॉब्लम लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड मैरिटल क्वालिटी, तो इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लाइफ सेटिस्फैक्शन की वजह से मैरिटल सेटिस्फैक्शन ज्यादा है कि मैरिटल सेटिस्फैक्शन की वजह से लाइफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा है. मतलब इन दोनों वेरिएबल को हम टू वे इस्तेमाल कर सकते हैं. बोथ ऑफ मतलब एनी वन ऑफ देम कैन बी ट्रीटेड एज IV and DV. So all the psychological variables are such type in nature that no definite cause and effect relationship can be established between them. Cause and effect relationship में आप inverse नहीं कर सकते हैं. Effect cause नहीं हो सकता, cause effect नहीं हो सकता. लेकिन जब हमारे psychosocial वेरिएबल्स या साइकोसोशल कंस्ट्रक्ट ऐसे होते हैं जो म्यूचुअली हम उन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं एज IV और DV. दैट इज व्हाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और साइकोसोशल में एसोसिएशन. थर्ड डिफरेंस है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फिजिकल एंड सोशल साइंस फील्ड्स इवन दो इट मे बी क्वाइट डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट. ये फिजिकल एंड सोशल साइंसेस की फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है, और जबकि सोशल रिसर्च इज ब्रॉड एंड एक्सप्लोरेटरी. एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस कहाँ किन्हें कहा जाता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस वो होती हैं जिनमें हमारे पास प्रीवियस डेटा नहीं होता है. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट और द सेकेंड टाइम. मतलब उस फील्ड में ज्यादा काम नहीं हुआ होता और वो उस एरिया का इनिशिएटिव वर्क होता है. वी आर गोइंग टू सेट अ ट्रेंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया. दैट इज व्हाई दीस टाइप ऑफ रिसर्चेस आर नोन एज द एक्सप्लोरेटरी. तो ये हमारे टॉपिक पे डिपेंड करता है कि वेदर माय रिसर्च इज गोइंग टू बी एक्सप्लोरेटरी और रिलेटेड टू the survey research or some correlational researches. तो अगर हमारा टॉपिक नया है, उसके ऊपर हमारे पास पास्ट एविडेंसेस या पास्ट रिसर्चेस नहीं है, तो दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस. फोर्थ डिफरेंस है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डज नॉट कंपेयर वेरिएबल्स while social researches does. It compares two variables and describe the relationship between them. Experimental में हम क्यों नहीं compare कर सकते? क्योंकि उसमें cause and effect relationship defined होते हैं, तो उसमें हम ये compare नहीं कर सकते हैं कि इनमें inverse relationship possible है कि नहीं है.
जबकि सोशल रिसर्चेज में जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि दोनों चीजें ना मतलब इनवर्सली करके भी हम उन्हें स्टडी कर सकते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन और लाइफ सेटिस्फैक्शन में क्या रिलेशनशिप है। जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा तो लाइफ सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर लाइफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा तो क्या जॉब सेटिस्फैक्शन कम होगा या ज्यादा होगा। मतलब हम दोनों तरीके से उन्हें स्टडी कर सकते हैं, तो इनमें वेरिएबल्स का कंपैरिजन पॉसिबल है। फिफ्थ डिफरेंस इज कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस आर ऑलवेज क्वांटिटेटिव इन nature, while social researches can be both quantitative and qualitative depending on the time and the situation where it has been used. मतलब हमें डेटा कैसे लेना है और हम इंडिविजुअल के पर्सनालिटी के किन एस्पेक्ट्स को कंपेयर करना चाहते हैं, उसके बेसिस पर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव का क्या होता है, जहां पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। क्वालिटेटिव जहां पे हमारे पास टेक्स्ट होता है और हम उस टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, जैसे केस स्टडीज हो गई, स्टोरीज हो गई। टीएटी एंड सीएटी आर द एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्चेस। Sixth difference is that experimental research is carried out in an unnatural setting because most of the factors that influence the settings are controlled. ये अधिकतर लैब सिचुएशन में परफॉर्म की जाती है, क्योंकि इनमें हम इतने रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं ना कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में जब हम स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज एक्सप्लोर करते हैं तो कंट्रोलिंग टेक्निक इज द फंडामेंटल कीवर्ड फॉर ऑल द एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस। तो कंट्रोलिंग हम नेचुरल सिचुएशन में तो नहीं कंट्रोल कर सकते ना। अगर हमें नॉइज कंट्रोल करनी है या लाइट कंट्रोल करनी है तो नेचुरल सिचुएशन में हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो सिंस ऑल द एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस आर कंडक्टेड इन मोर और लेस lab situation, so more control can be exerted in experimental research, while this is not possible in the case of social research, because social research setting remains natural and uncontrolled. Seventh difference is that in experimental research, researcher can control and manipulate controlled variables. अब इसमें कोई भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं उसमें तीन टाइप के वेरिएबल्स तो होते ही है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल्ड या एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं कि उनका अनवांटेड इफेक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे ना पड़े, और जिन वेरिएबल को हम कंट्रोल करते हैं उनका हम इफेक्ट देखना चाहते हैं बाय मैनिपुलेटिंग ऑल दोज वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ एंजाइटी, वी आर गोइंग टू मैनिपुलेट एंजाइटी इन डिफरेंट वेज. For example, we can take 3 levels of anxiety: high, average, and low, and then we have to see the effect of anxiety upon the performance. So, in experimental researches, manipulation of the variable is possible, while this is not possible in non-experimental and social researches. Eighth difference is experimental research is mostly used to make scientific innovations and find major solution to problems. जैसा कि हमने बताया है कि solution to problems इससे ज्यादा generate होते हैं because we are trying to explore the cause and effect relationship between two or more than two variables. And while social research is used to define subject characteristics, measure data trend, compare situations, and validate existing conditions. Ninth difference is experimental research answers the question of why something is happening. Why means cause and effect relationship. तो ये जो जितने डिफरेंसेस हैं, हालांकि ये इंडिपेंडेंट डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुछ डायमेंशंस में ये इंटर रिलेटेड हैं. वाई समथिंग का क्या मतलब होता है कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जब एक्सप्लोर करते हैं तो कॉज क्या बताता है कि ये चीज इसकी वजह से हुई. सो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द वाई डायमेंशन ऑफ द थिंग्स. While social research is quite different in nature, as they are more descriptive in nature, with the end goal being to describe what. Experimental में हम why पे focus करते हैं, social researches में हम what पे focus करते हैं. There are 3 types of experimental researches, namely experimental research, quasi-experimental research, and the true experimental research design. While social research can be classified into cross-sectional research, correlational research, and observational research. Next, ये इनके different types हैं.
नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज कंपेरेटिवली मोर वैलिड एंड रिलायबल। इसके पीछे जो कारण है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट ज्यादा कंट्रोल्ड सिचुएशन में करते हैं तो वो हमारा ज्यादा वैलिड और रिलायबल रिजल्ट्स हमें प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसमें हम डेटा हमारा रेंडमाइज्ड होता है, कंट्रोल सिचुएशंस में होता है, आईवी एंड डीवी आर कंट्रोल्ड एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड व्हाइल इन द कंट्रोल सिचुएशंस। तो naturally the validity and reliability of the results found by experimental research are more as compared to the results we get from the social researches. And the last difference is that experimental researches necessarily involve independent, dependent, extraneous, controlled, intervening, ये सारे वेरिएबल उनमें मतलब होंगे ही होंगे, while this is not the case for social researches. हम social researches बिना किसी वेरिएबल के भी कर सकते हैं. And observation method is the example of this. क्योंकि जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो we are just observing the natural phenomena of some group. वहां कोई आईवी नहीं होता, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है. हम सिर्फ किसी फेनोमेना को या जैसे मान लीजिए हम किसी इवेंट को उनके नेचुरल हैबिटेट में ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं. जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल का मैच हो रहा है, तो उसमें अब हम कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो नहीं कर सकते हैं, और उसमें हम उस समय ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि इस फुटबॉल के मैच में दोनों टीम्स में कौन सा जो प्लेयर था वो बहुत ज्यादा इनिशिएटिव था, कौन सा जो प्लेयर था वो बहुत एग्रेसिव था, कौन सा प्लेयर बहुत नर्वस था, किस प्लेयर का जो योगदान रहा वो सबसे ज्यादा रहा. इसके लिए हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेते हैं, उनमें ये रिस्पॉन्सेस सारे हम लिख लेते हैं, और जिस समय हम ऑब्जर्व करते रहते हैं उस समय उनके सामने टैलीज लगा लेते हैं. तो जो ये ऑब्जर्वेशन मेथड्स होते हैं इनमें कोई वेरिएबल नहीं होता है. वी जस्ट वांट टू प्रिडिक्ट द जनरल ग्रुप डायनेमिक ऑफ सम ग्रुप एक्टिविटी. दैट इज ऑल द पर्पस ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस में आईवी, डीवी या कंट्रोल वेरिएबल या कुछ एक्सचेंजेस वेरिएबल नेसेसरली इन्वॉल्व होते हैं. इनके बिना एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस आर नॉट पॉसिबल, while this is not the case with the social researches. ये references हैं. तो this was all about social researches.